Hello students, welcome to all of you. Today we are going to learn a new grammar clause. See students, what is the meaning of the clause? Clause, it means उपवाक्य. Clause का मतलब होता है उपवाक्य. Now see what is the definition of the clause. Clause, it means जब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट हो, इट मीन्स कर्ता हो, और एक वर्ब या क्रिया, वर्ब इट मीन्स क्रिया, कि जहां पर क्या हो, क्रिया हो, तो उसे क्लॉज कहते हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लॉज. इट मीन्स उपवाक्य. सी, क्लॉज इज मेड बाय दीज टू वर्ड्स, subject plus predicate. See what is the meaning of the subject and predicate. Subject, the name of the person or the things we are speaking about is called the subject. जहां पर जब नाम आता है, किसी पर्सन का नाम होता है या किसी वस्तु का नाम होता है, and we are speaking about it, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो it's called the subject, कर्ता. And see what is the predicate? The part which tells something about the subject. वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में कुछ बताता है, तो इट्स कॉल्ड द प्रेडिकेट. और इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है क्लॉज. इट मीन्स कोई भी जब सेंटेंस हमारा बनता है तो वहां पे सब्जेक्ट की जरूरत होती है, प्रेडिकेट की जरूरत होती है. Now see ahead, अब आगे देखेंगे कि what are the different types of the clause. See, there is not a type of the clause, there are the different kind of the subordinate clause, right? So there are the three types of the clause. First is the main clause, second is the coordinate clause, and third one is the subordinate clause. These are the three different kind of the clause. First is the main clause, and second is the coordinate clause, and third one is the subordinate clause. And there are the three main type come under the in the subordinate clause. It's called the noun clause, adjective clause, and adverb clause, which you have to find out in your exam. इस तरह से यहाँ पर आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आइडेंटिफाई करना है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा प्रकार है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न how you identify the main clause and subordinate clause, and what is the main clause and what is the coordinate clause and what is the subordinate clause. main clause को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब मुख्य वाक्य. मेन क्लॉज इट मीन्स मुख्य वाक्य. जो वाक्य हमारा अपने आप में पूरा हो, परिपूर्ण हो, इट्स कॉल्ड द मेन क्लॉज. फिर सेंटेंस इज कंप्लीट, इट्स नॉट डिपेंड ऑन अदर सेंटेंस, वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता है. इट्स कॉल्ड द मेन क्लॉज. एंड सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेट क्लॉज. अब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है इट्स अ इक्वल ऑफ द मेन क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो मेन क्लॉज की तरह ही इक्वल होता है, वाक्य में उसका समान स्थान होता है. एंड सी थर्ड वन इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो क्लॉज, अब जो क्लॉज या जो वाक्य हमारा मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, इट्स कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज also have a three kinds.
सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 प्रकार होते हैं. देयर आर द 3 काइंड्स: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज and adverb clause. Right? These 3 are the different kind of the subordinate clause. Let's see how we identify the main clause and the subordinate clause. Because आपको एग्जाम में coordinate clause नहीं पूछा जाएगा. You have to focus on these 2 parts, main clause and the subordinate clause. And what are the different types of the subordinate clause? कि कब जो है वो noun clause है, adjective clause है, either adverb clause है. Now we will see some sentence. How you can identify the main clause, subordinate clause, either we can say coordinate clause. See this sentence. Anand says that Mamta is a good girl. See, Anand says, आनंद ने कहा. अभी आनंद ने कहा that sentence is complete. वो अपने आप में complete है. So that it's our main clause. इसलिए ये हमारा क्या हो गया? Main clause हो गया. अब यहाँ पे देखोगे that ममता is a good girl. कि ममता अच्छी लड़की है. अभी कि ममता अच्छी लड़की है. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. अब की से कौन सा वर्ड हमारा शुरू होता है, कौन सा सेंटेंस शुरू होता है? इट्स डिपेंड ऑन मेन क्लॉज. इट मीन्स दैट, ये जो दैट है ये डिपेंड करता है हमारा मेन क्लॉज पे. सो दैट इट्स आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. इन इजी वे यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन आवर सेंटेंस इज ज्वाइंट विथ अ दैट, व्हाट, व्हिच, whom, how, राइट? इन सबसे अगर जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन वर्ड आ गए, तो कंजंक्शन वर्ड से जब जुड़ा होगा तो कंजंक्शन वर्ड के पहले जो भी आएगा दैट इज योर मेन क्लॉज, और कंजंक्शन वर्ड से लेकर एंडिंग तक जो आएगा दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज. इन इजी वे यू कैन आइडेंटिफाई इट. दैट इज द, you identify main clause and the subordinate clause. Now we see how you identify the coordinate clause. Coordinate clause, it means both sentence are equal. Both sentence, दोनों sentence जो होते हैं that are the equal, वो एक समान होते हैं. For example, she went to market and bought something. अभी मार्केट गई और कुछ खरीदी. अब जाना और खरीदना, बोथ सेंटेंस आर द इक्वल. दोनों का जो है दर्जा समान है. सो दैट इज आवर कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है. इन इजी वे यू कैन आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमारा एंड, बोथ, बट, also, as well as, not only but also, neither nor, either are, so, yet, इन सभी वर्ड से ये कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है. When you see that words and, both, but, also, as well as, not only but also, neither nor, either are, when you see that words, it means that is our coordinate clause. तब हमें समझना है कि वो हमारा जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज है. एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, हाउ यू आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इन इजी वे कि यू कैन आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो दैट, विच, who, whom, whose, what, because, since, why, where, while, how, so that. अभी इन सब वर्ड से जब हमारा सेंटेंस जुड़ा होगा तो इन सब से जिसकी शुरुआत होगी दैट इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इन इजी वे यू कैन आइडेंटिफाई आवर main clause,
subordinate clause and coordinate clause. Now let's see types of the subordinate clause. I already had told you, मैं already आपको बता चुकी हूँ कि there are the three kinds of the subordinate clause. कि यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं subordinate clause के. First is the noun clause, second one adjective clause, and third one is the adverb clause. Again I am repeating. There are the 3 kinds of the subordinate clause. First is the noun clause, second is the adjective clause, and third one is the adverb clause. Let's start first how you identify the given sentence is your noun clause. कि कैसे जो है आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो आपका नाउन क्लॉज है. ऑलवेज माइंड दैट नाउन क्लॉज जब वाक्य में कंजक्शन वर्ड के पहले वर्ब, इट मीन्स क्रिया आए तो दिया गया क्लॉज हमारा नाउन क्लॉज होता है. दैट इज द इजी वे टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज. ऑलवेज माइंड दैट जो हमारा कंजक्शन वर्ड है जैसे दैट, विच, हु, हुम, हुज, व्हाट, बिकॉज, सिंस, व्हाई, वेयर, व्हाइल, सो दैट, दीज आर द कंजक्शन वर्ड. और जब हमारा कंजक्शन वर्ड के पहले वर्ब होगा, क्रिया होगा, तो ऑन दैट टाइम यू कैन इजीली द गिवन सेंटेंस इज योर नाउन क्लॉज. कि दिया गया सेंटेंस हमारा नाउन क्लॉज है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट सेंटेंस, सी द फर्स्ट सेंटेंस. Riya says that she did everything possible. That is the sentence given to you. Now identify the clause, types of the clause. See, Riya says, that is your main clause because conjunction word is that. और that कि पहले जितना भी आया है दैट इज योर मेन क्लॉज. तो इजीली आई थिंक सो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई मेन क्लॉज. तो हियर रिया सेज दैट इज द मेन क्लॉज. अब दैट से लेके दैट शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो यू हैव टू राइट दिस वे सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब कहां से कहां तक है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज? दैट शी डिड एवरीथिंग possible. That is your subordinate clause. अब kind क्या है, इसका प्रकार क्या है? It's a noun clause or adjective clause or adverb clause. Which clause is it? It is your noun clause. How you identify? Because that के पहले यहाँ पर say आया है. Say it means that is verb. और जब verb आता है तो यहाँ पर हो जाता है noun clause. तो easily you can write noun clause. Let's see the second sentence. Everyone assumed that he was the culprit. अब यहाँ पे देखना, everyone assumed that. अब that is your conjunction word. यहाँ पे that क्या है हमारा? conjunction word है. और conjunction word के पहले आया assumed. Assume मतलब that is your verb. Assume करना, मानना, that is verb. अब verb आ गया so that it's a noun clause. But we have to write answer in this way. Main clause. What is the main clause? Everyone assumed. अब that he was the culprit. That he was a culprit. यहाँ से हमारा है subordinate clause. What is the kind of it? Noun clause. इजिली यू कैन आइडेंटिफाई. क्यों नाउन क्लॉज है? बिकॉज यहाँ पे वर्ब आ गया, हमारा कंजक्शन वर्ड के पहले वर्ब आ गया. सी द थर्ड सेंटेंस. आई नो दैट माई एफर्ट्स विल पे ऑफ. अब यहाँ पे अगेन दैट है, दैट के पहले जितना भी आया दैट इज योर मेन क्लॉज. तो यहाँ पे हो गया आई नो. आई नो इज द मेन क्लॉज.
सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कहां से कहां तक है? दैट माई एफर्ट्स विल पे ऑफ, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका काइंड क्या है, प्रकार क्या है? दैट के पहले वर्ब आया है। जब भी आप प्रकार पहचानोगे तो उसके लिए जरूरी है कि यू हैव टू सी द वर्ड विच कम्स बिफोर द कंजक्शन, जो हमारा कंजक्शन के पहले आया हो। तो दैट के पहले आया नो, तो यहां पे हो गया नाउन क्लॉज। सी द नेक्स्ट वन, वी ऑल नो दैट गुड बजट्स गुड। अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है? वी ऑल नो। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से स्टार्ट होगा, दैट गुड बजट गुड। एंड काइंड ऑफ इट, दैट के पहले नो आया है, दैट इज द वर्ब, सो दैट काइंड क्या होगा इसका? नाउन क्लॉज। सी अहेड, फॉर द मोर क्लियरेंस I want to know what makes you laugh. See, अब यहाँ पे कंजक्शन वर्ड what है, what के पहले जितना है that is your main verb, तो यहाँ पे हो जाएगा I want to know। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कहां से कहां तक है? what makes you laugh, and kind of you, what के पहले no आया, so that it's a noun clause। See ahead, I wonder why Tom is absent. See, conjunction word is why. Why के पहले जो आया हमारा मेन क्लॉज है, it means I wonder। Subordinate clause, why Tom is absent, and kind of it, kind क्या है हमारा? wonder। इट मीन्स चिंतित होना, दैट इज योर वर्ब, और इसलिए यहां पर आया है नाउन क्लॉज। कुछ एग्जांपल्स हम और देखेंगे, हाउ यू सॉल्व इन योर एग्जाम। ही फाउंड दैट द बोन्स हैड बीन वेल ड्राइड बाय द सन। सी, व्हाट इज द मेन क्लॉज? ही फाउंड। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मेन क्लॉज ही फाउंड। अब दैट से लेकर पूरा हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पे हम पूरा लिखेंगे दैट द बोन्स हैड बीन वेल ड्राइड बाय द सन। अब काइंड ना लिख के यहां पे डैश देकर आप लिख सकते हो कि ये कौन सा काइंड है इसका? नाउन क्लॉज। तो यहां पे हम लिख देंगे नाउन क्लॉज। इजिली यू कैन आइडेंटिफाई। सी द मोर एग्जाम्पल, सी थिंक्स शी इज अ ग्रेट। अब यहां पे देखिए कंजक्शन वर्ड नहीं है, बट यू हैव टू इमेजिन दैट शी थिंक्स दैट शी इज ग्रेट। सी, अब दैट के पहले है शी थिंक्स, तो यहां पे हम लिख देंगे शी थिंक्स, दैट इज आवर मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा? दैट शी इज ग्रेट। अब दैट शी इज ग्रेट, अब ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? नाउन क्लॉज। क्यों हुआ नाउन क्लॉज? बिकॉज यहां पे दैट के पहले थिंग्स आया है, थिंक इज अ वर्ब। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, आई सॉ दैट माई एल्डेस्ट ब्रदर बीइंग बीटन बाय फादर। तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या हो गया हमारा? आई सॉ। सॉ इज द वर्ब और दैट इज द कंजक्शन वर्ड। अब दैट से हम स्टार्ट करेंगे, दैट माई eldest brother being beaten by father। और ये क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? नाउन क्लॉज। सी अहेड,
आगे हम देखते हैं, he knew that the time was important. See, main clause he knew. Subordinate clause क्या हो जाएगा हमारा? That the time was important. और प्रकार इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ये भी हो जाएगा नाउन क्लॉज. तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस तरह से हमें एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. नाउ सी द सेकेंड वन, सेकेंड काइंड ऑफ इट. दूसरा हम प्रकार देखेंगे. सेकेंड वन इज द एडजेक्टिव क्लॉज. पहला हमारा था नाउन क्लॉज. अब देखेंगे सेकेंड हमारा जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज. तो हाउ यू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज? माइंड दैट जब वाक्य में कंजक्शन वर्ड, अब कंजक्शन वर्ड सेम वही कंजक्शन वर्ड रहने वाले हैं, जैसे दैट, विच, हु, whom, whose, what, because, since, why, where, while, how, so that. These all are the conjunction words. और जब conjunction word के पहले आपका noun हो, इट मीन संज्ञा हो. देखिए अभी noun clause में क्या था? वर्ब होता है. लेकिन यहां पर adjective clause में आपको माइंड रखना है कि जब जो है नाउन आए कंजक्शन वर्ड के पहले तो इट मीन्स दिया गया क्लॉज हमारा जो है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है. सी द एग्जाम्पल ऑफ इट कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बिल्डिंग दैट होस्टेड द सेमिनार. सी, दिस इज द बिल्डिंग. अब ये देखोगे दिस इज द बिल्डिंग, दैट इज योर मेन क्लॉज, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अपने आप में पूरा है. और यहाँ पे कंजक्शन वर्ड है दैट. दैट होस्टेड द सेमिनार. अब दैट होस्टेड द सेमिनार, दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये कौन सा प्रकार है हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज. हाउ वी आइडेंटिफाई दैट इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि दैट के पहले आप देखोगे द बिल्डिंग आया. बिल्डिंग इज द नाउन. और यहाँ पे मैंने वही कहा है कि कंजक्शन वर्ड के पहले जब नाउन आ जाए इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज योर एडजेक्टिव क्लॉज. कि हमारा दिया गया सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. इट मीन्स दैट इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज. See the second one. For the more clearance, I want to find the artist who created this piece of art. See, what is the main clause? अभी who यहाँ पर जो है आपका conjunction word है. conjunction word के पहले जो आया that is your main verb, main clause. तो I want to find the artist. That is your main clause. अब who से जो start हुआ है that is your subordinate clause. तो who created this piece of art? That is our subordinate clause. अब who के पहले artist आया. artist is the noun. artist word जो है वो noun है. कलाकार, the name of the person, the profession of the person. तो यहाँ पर ये जो है हमारा noun है, so that it's our adjective clause. Same as, see the next one. We witnessed an incident which was scary. अब देखो यहाँ पे which के पहले incident है, घटना. That is also noun. तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया. वी विटनेस्ड एन इंसिडेंट, दैट इज आवर मेन क्लॉज. और जो यहां से शुरू हुआ है विच वॉज स्कैरी, विच वॉज स्कैरी, दैट इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज.
अब विच के पहले इंसिडेंट आया है, नाउन आया है, इट मीन्स दैट इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसी तरह से और क्लियर करने के लिए नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स एंड हाउ यू डू इन द एग्जाम। सी, अब जैसे ये सेंटेंस दिया है, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क। अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है हमारा, अब हु के पहले जो भी आया होगा दैट इज आवर मेन क्लॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय, राइट, दैट इज आवर मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां से होगा, हु इज लुकिंग, तो यहां से हम लिख देंगे हु इज लुकिंग फॉर वर्क। अब काइंड ऑफ इट क्या लिखेंगे हम इसका, एडजेक्टिव क्लॉज। इस तरह से आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्यों है एडजेक्टिव, बिकॉज हु के पहले बॉय आया, बॉय इज आवर नाउन। जब यहाँ पे कंजक्शन वर्ड के पहले नाउन आ जाए तो दैट इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। सेम एज सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर द पीपल हु। अब यहाँ पे देखो हु कंजक्शन वर्ड और हु के पहले आया पीपल, पीपल इज द नाउन, इट मीन्स इजिली यू कैन आइडेंटिफाई कि दैट इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। तो दे आर द पीपल, दे आर द पीपल। अब इसी कड़ी में हम आगे क्या देखेंगे, दे आर द पीपल। अब इसके बाद आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हु। क्या लिख देंगे हम, हु रॉब्ड द शॉप yesterday, right? अब that is our adjective clause. Easily you can identify that is your adjective clause because people, अब यहाँ पे people जो है, people word जो दिया गया है that is our, यहाँ पे people जो दिया गया है वो हमारा यहाँ पर noun है। See the next, I know the place where he was born। अब यहाँ पे देखोगे तो where is the conjunction word और उसके पहले है place, place is the noun। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I know the place। अब where से क्या हो जाएगा यहाँ पे, where he was born, that is your adjective clause। ये हमारा क्या है, adjective clause है। same as see the next, August is the month when we have our unit test। अब when is the conjunction word और उसके पहले word आया the month is the noun। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त इज द मंथ। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हेन वी हैव आवर यूनिट टेस्ट। अब ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द गर्ल whom I met yesterday। अब दिस इज द गर्ल whom I met yesterday, गर्ल जो है यहाँ पर नाउन है और उसके बाद आया whom इज द कंजक्शन वर्ड। अब कंजक्शन वर्ड के पहले हमारा जो भी आया है दैट इज आवर मेन क्लॉज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज द गर्ल। अब whom I met yesterday ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ हम लिख देंगे whom I met yesterday और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज।
It's our adjective clause. So in this way we can easily identify the noun clause and adjective clause.